Hello friends, welcome to CA Intermediate Cost and Management Accounting. Myself CA Gurmukh Raghani, your mentor for costing and management accounting. Friends, let me introduce myself before I start with the subject. I started journey of my graduation and finished in the year 98 with 7th in merit all over Mumbai University. It was first rank in Thane district, securing highest marks in some of the main subjects. Friends, I then started my CA career. I did my training, my articleship in topmost CA firm AF Ferguson and Company, which is now merged with Deloitte. I had experience of doing audit of top management, top companies like Hindustan Unilever Limited, ITC, Cadbury, Nestle, Pfizer, Rohn Polanc, Clariant India Limited, Bharat Gears and many other manufacturing companies. Friends, after clearing CA in 2001, I started teaching, and since then I have taught more than 150 batches of CA and commerce, plus over 11,000 students have got training from our classes. Friends, many of our students have secured merits. They are securing merits year on year. Especially, I am very proud of my students who secure 80 and 90 plus marks in cost and management accounting. This is one of my favorite subject. It was my favorite when I was a student, and as a teacher, this is one of most favorite subject of mine. Here, we will provide you coaching of cost and management accounting with two teachers. One will be myself and other will be my colleague, my friend, one of the leading teacher in Mumbai and Thane district, Omkar Ambre sir. He is a chartered accountant as well as cost accountant all over India, 11th in merit. His teaching has been awesome. Friends, the main core, you can say USP of our teaching is the conceptual understanding. Because we believe that what you understand is something you retain for long term rather than what you learn. Don't learn, understand. So our USP, our main focus will be understanding of the basic concepts. And then we'll teach you how to apply those basic concepts into the problems. Doston, in this session, I would now discuss the syllabus of cost and management accounting, the weightage of the marks, and what we will be doing, what we will be covering in our sessions. One thing I can assure you that our lectures will provide you thorough clarity of concepts. Enough variety of sums will be discussed so as to get a good confidence. We will also be conducting a lot of test papers and will be checking it and giving you the results along with the suggestions for the improvement. Friends, now I will talk about the syllabus of cost and management accounting. Here friends, if you just see the syllabus of cost and management accounting, again 100 marks, there are 15 topics. I will get into the index of all the topics. I have the details. चलो, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो थियोरी है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फाइन, दैट विल बी डिस्कसिंग, नो इश्यूज. I will talk about the theory part, how much theory part we have in the paper every year. Mainly we'll be starting with the chapter number 2 as the practical chapter. सबसे पहले हम सीखेंगे material cost. देखो, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है? ये सब्जेक्ट मेनली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है और सर्विस एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है. ट्रेडिंग एंटिटीज के साथ ये सब्जेक्ट इतना कनेक्टेड नहीं, मेनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटिटीज. तो अब जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं बच्चों, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में 3 मेन एलिमेंट्स लगते हैं. पहला एलिमेंट लगता है रॉ मटेरियल, दूसरा एलिमेंट लगता है लेबर, तीसरा एलिमेंट लगता है
जो फैक्ट्री में आप इस प्रोडक्ट को बनाते हैं उस फैक्ट्री के ऊपर के खर्चे, जैसे रेंट है, लाइट का बिल, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, बहुत सारे हजारों खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री में किए जाते हैं। दोस्तों, हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को हमें इन डेप्थ समझना पड़ेगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 में मटेरियल कॉस्ट, हम रॉ मटेरियल कंपोनेंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप देखो यहां पे आप एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब यहां पे हम लेबर के बारे में बात करेंगे, लेबर कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ऑसम डिस्कशन होने वाला है, अल्टीमेट नॉलेज मिलने वाला है बच्चों। एट द सेम टाइम तीसरा जो एलिमेंट है, ओवरहेड्स की भी बात करेंगे। कौन से टाइप के ओवरहेड्स होते हैं, उसको हम कैसे प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं। दोस्तों, बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूंगा, प्रोडक्ट के ऊपर आप बोलेंगे कि सर ये माउस है, इस माउस को बनाने के लिए हाँ प्लास्टिक लगता है, क्या क्या सामान लगता है पता चलता है, इसको बनाने का लेबर कितना पता चलता है, लेकिन इसको बनाने के लिए जिस फैक्ट्री में बनाया उस फैक्ट्री का लाइट का बिल कितना लगाऊं, उस फैक्ट्री का रेंट कितना लगाऊं, क्लीनिंग का खर्चा कितना लगाऊं, ओवरहेड्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों। इस चैलेंज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम हर प्रोडक्ट के ऊपर ओवरहेड्स चार्ज करेंगे, कॉस्ट में ऐड करेंगे दोस्तों, उसके लिए हमारा टॉपिक कॉल्ड ओवरहेड्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन, हम क्या क्या सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स का ही नेक्स्ट लेवल है। मॉडर्न अप्रोच, यहां पे हम ट्रेडिशनल अप्रोच सालों से जो करते आ रहे हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न अप्रोच आया है कि ये जो मैंने माउस बनाया, इस माउस पे खर्चा कैसे लोड करूंगा, उसका मॉडर्न अप्रोच, बेस्ट टेक्निक आप सीखेंगे। आजकल बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी, इफ यू टॉक अबाउट, मेरा फ्रेंड एक कंपनी में जॉब करता था, सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड, तो उन्होंने बताया कि वहां पे भी ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी आस्ते आस्ते सब बेस्ट कंपनीज, बड़े एमएनसीज एबीसी मेथड यूज कर रहे हैं। ये क्या होता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं, हम बच्चों डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मजा आता है। अच्छा, जर्नल एंट्री, अरे डबल एंट्री कैसे भूल सकते हैं, अकाउंट्स का डबल एंट्री, अरे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहां पे भी सर डबल एंट्री हमको कहीं नहीं छोड़ेगा बच्चों, हर जगह आपको पकड़ के रखेगा। कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट में भी डबल एंट्री सिस्टम है, क्या बात है, ये सब्जेक्ट में भी डबल एंट्री सिस्टम है, वो भी हम सीखेंगे बच्चों। अच्छा, इसके बाद ये हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, इसका हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट का मेन टारगेट क्या है भाई, तुम जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, ये पेन है, ये मेरा डिजिटल पेन है, ये मेरा कीबोर्ड है, ये मेरा रिमोट कंट्रोल है, भाई इसको जो कंपनी बनाता है कितने में बनाता है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, क्योंकि जब तक मैं सही कॉस्ट नहीं निकालूंगा, मैं सही सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा। मेरा कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इफ आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, इट विल नॉट बी इजी फॉर मी टू डिसाइड दी सेलिंग प्राइस। मुझे पता ही नहीं चलेगा कितने में बनता है, तो मैं सेलिंग प्राइस गलत डिसाइड करूंगा, तो गलत प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए देखो, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, उसको बनाते हैं फिर बेचते हैं, आपके हाथ में क्या है पहले यह समझना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है, सर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा बच्चों, ये सेलिंग प्राइस किसके हाथ में है, अरे सर सेलिंग प्राइस तो मार्केट डिसाइड करता है। भाई मार्केट में 4GB 64GB का मोबाइल एवरेज 10,000 के रेंज में बिकता है। आप बोलेंगे नहीं मैं तो 13,000 15,000 में बेचूंगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। सेम प्रोसेसर, सेम चीजें,
मार्केट में 4 कंपनी 10-12 हजार के रेंज में बेच रही हैं, आप उसको 15 में बेचेंगे तो नहीं चलने वाला। मतलब आपकी सेलिंग प्राइस मार्केट के हिसाब से आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में क्या है सर? हमारे हाथ में हमारा क्या है? कॉस्ट। हम जितना कॉस्ट को समझेंगे उतना उसको कंट्रोल करेंगे, जितना उसको कंट्रोल करेंगे उतना प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट। रादर आई टेल यू, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक पूरा डिग्री है, मालूम है क्या? अरे कौन सा डिग्री है इस सब्जेक्ट के ऊपर? यस, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जिसको पहले CWA बोलते थे, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, अब उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग सीखेंगे भाई जॉब प्रोडक्शन में, बैच प्रोडक्शन में कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे सर ये जॉब प्रोडक्शन क्या होता है? बच्चों, आप अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो एक फर्नीचर की दुकान की मैं बात करूंगा, टू अंडरस्टैंड जॉब प्रोडक्शन, मेरा टारगेट वही, वापस रिपीट करता हूं, मैं आज आपको हर टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये टॉपिक में आप क्या सीखेंगे। अच्छा, आप एक फर्नीचर के दुकान में चले जाओ, भाई बोलो मेरे को 4x3 का सोफा चाहिए, बेड बना के दो, ये बना के दो, मुझे ये चाहिए। तो फर्नीचर का दुकान आपके नीड के हिसाब से आपको कोटेशन देगा, क्योंकि हर कस्टमर का नीड अलग होता है। किसी को 3x6 का बेड चाहिए, किसी को 4x6 का बेड चाहिए, किसी को 6x6 का बेड चाहिए, किसी को 7x7 का बेड लगता है। भाई एक ही बेड पे पूरी फैमिली आ जानी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे भी बीच बीच में डाल देने का। अच्छा, तो भाई हर प्रोडक्ट अलग साइज का है। फिर किसी को नॉर्मल प्लाईवुड में चाहिए, किसी को हाई क्वालिटी प्लाईवुड में चाहिए, किसी का सरमाई का स्टैंडर्ड चाहिए, किसी को सरमाई का एकदम जबरदस्त आजकल के नए टाइप के जो सरमाई का आए हैं ना वो चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, जितनी भी वैरायटी है ये सब नॉन यूनिफॉर्म है। सर एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट का नाम बता दो। बच्चों जैसे मैं बात करता हूं, ये बिस्लरी का बॉटल है, अब बिस्लरी बनाने वाली कंपनी लाख बॉटल बनाती है 1 लीटर की, तो एक ही जैसी बनेगी यूनिफॉर्म प्रोडक्ट? यस और नो? हाँ, लेकिन फर्नीचर इज अ नॉन यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग साइज, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसकी कॉस्ट भी अलग होती है, प्राइस भी अलग होती है। ये टाइप की प्रोडक्ट की जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, तो जॉब कॉस्टिंग तो समझ में आ गया सर। तो ये उसके नीचे ये बैच कॉस्टिंग क्या है? अरे बच्चों आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अब ये मेरे पास बॉटल है, अरे भाई बॉटल देखो, ये मैं ना बॉटल यहां पे अगर मैं देख रहा हूं, आपके हाथ में कोई भी प्रोडक्ट है जिसपे MRP लिखी हुई है, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उस पे ना आपको बैच नंबर लिखा रहेगा, इसमें लिखा है बैच नंबर। बच्चों व्हाट इज बैच प्रोडक्शन? देखो क्या होता है, हर एक प्रोडक्शन का एक कैपेसिटी होता है, एट अ टाइम कितना बन सकता है। अगर मैं समझो आज एक मैं जब ऑडिट करता था आर्टिकलशिप में, तो एक मैं दवाई की कंपनी में चला गया। आपको पता है हर दवाई की प्रोडक्ट में ना बैच नंबर लिखा होता है। तो मैं जाके देखा ना, तो उनका एक बड़ा सा मशीन था, टैंक था, जिसमें दवाई बनती थी। उसकी कैपेसिटी थी लगभग मेरे हिसाब से 100 लीटर के ऊपर थी, 100-150 नहीं, 100 लीटर कम बोल रहा हूं, 1000 लीटर की, सॉरी 1000 लीटर्स की कैपेसिटी थी। तो वो लोग एट अ टाइम 1000 लीटर्स दवाई बनाते थे। तो 1000 लीटर्स दवाई बनाएंगे, फिर उसको पैक करेंगे, फिर 1000 लीटर्स बनाएंगे पैक, क्योंकि मशीन टैंक की कैपेसिटी 1000 लीटर थी। तो दोस्तों जब एक बार बनाएंगे तो उसको एक बैच बोलते हैं। 1000 लीटर बन के पैक हो गया, फिर दूसरा 1000 लीटर बनाएंगे, फिर दूसरा बैच, फिर वो पैक होएगा, फिर तीसरा 1000 लीटर बनाएंगे, तीसरा बैच, फिर उसको पैक किया जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? जा रहा है कि नहीं खोपड़ी में?
तो दोस्तों ऐसे प्रोडक्शन को हम बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। और आप देख लो जितने भी प्रोडक्ट्स आप हाथ में उठा के आज आप आजू बाजू में जितने भी प्रोडक्ट्स एमआरपी लिखे हैं वाले उठाएंगे ना, बैच नंबर पक्का लिखा रहेगा, बैच प्रोडक्शन। उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेन टारगेट है कॉस्ट कैलकुलेशन। सब्जेक्ट का नाम ही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेन फोकस। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्या होता है, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है, मेरे को ना ये बंगलो बना के दो, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है कि मुझे ये घर का ना 3 BHK घर है, मुझे इंटीरियर करके दो, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है मेरे किचन को मॉड्यूलर किचन बना दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या कोई और कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसकी कॉस्टिंग कैसे, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन के साथ साथ इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो 1 साल नहीं 2-3 साल चलता है। मुझे किसी ने दे दिया भाई बंगलो बनाओ, भाई बंगलो बनाओ, बना लिया बंगलो, बड़ा बंगलो था, मैं उसको बोला भाई 1 साल में नहीं बनेगा, मेरे को 2.5 साल लगेंगे। उसने बोला बना यार 2.5 साल में बना बंगलो। मैंने बोला बनेगा बंगलो, 5 करोड़ लगेगा। उसने बोला चलो डन। अब मैंने थोड़ा बंगलो बनाया, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर थोड़ा दूसरे साल में बनाया, कॉस्ट कैलकुलेट की, तीसरे साल में कंप्लीट हो गया। अब मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, बंगलो बनके तो तीसरे साल में रेडी हुआ, पैसा थोड़ा थोड़ा हर साल देता था। अब सवाल ये आता है मैं प्रॉफिट कैसे बुक करूं? क्या मैं तीसरे साल में पूरा प्रॉफिट बुक करूं जब मेरा बंगलो बन के रेडी हो गया, कि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा जो बनाता हूं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाऊं? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हम बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉस्टिंग होता है और कैसे प्रॉफिट बुकिंग होता है। बहुत ही जबरदस्त सीखने को मिलेगा। अच्छा ओके, अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। दोस्तों ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट आप सोच लो बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट समझो, मैं यहां पे बैठा हूं, क्लासरूम में बैठा हूं, बेंच पड़ी है सामने। अब ये बेंच अगर मैं बनाता हूं तो बेंच में कैसे ना, पहले एक डिपार्टमेंट, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बेंच बनाते हैं, फर्नीचर की फैक्ट्री है। तो पहला डिपार्टमेंट में ना, पहला प्रोसेस में फ्रेम बनेगा लोहे का, दूसरा डिपार्टमेंट में उस फ्रेम के ऊपर प्लाईवुड और सरमाई का लगाएंगे, तीसरा डिपार्टमेंट में उसको पॉलिशिंग और फिनिशिंग करेंगे। दोस्तों ये क्या हो गया, एक प्रोडक्ट बनाने के 1 2 3 स्टेप्स। जब एक प्रोडक्ट 3 अलग अलग स्टेप्स में बनता है, 3 अलग अलग प्रोसेस में बनता है, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, very much learning experience you will have. Lot of things are there to learn in cost accounting बच्चों, one of my favorite subject। कभी कभी ऐसा होता है जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट्स। क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम जब पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोल जब बनाते हैं बच्चों, तो पेट्रोल के साथ साथ केरोसिन भी बनता है अपने आप, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, जो भी आप उसको बोलो। तो एक ही प्रोसेस में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक मशीन में रॉ मटेरियल जाता है, आउटपुट 2 बनते हैं। तो 2 आउटपुट जब एक ही मशीन से, एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं, तो कॉस्ट कैसे दोनों में डिवाइड करेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट बच्चों। अरे कुछ खतरनाक जबरदस्त चीजें आप सीखने वाले हैं बच्चों। कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, क्या बात है, इसमें आप ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, क्या बात है, एरोप्लेन, टैक्सी, बस, दोस्तों इन सब की कॉस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे। भाई एरोप्लेन की जो कॉस्ट होती है, टिकट कैसे डिसाइड होती है, एरोप्लेन, बस, टैक्सी, स्कूल बस, ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स कैरियर के ट्रक्स होते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती, कैसे वो डिसाइड करते हैं कि एक टिकट कितने का, कैसे टैक्सी में डिसाइड होता है कि 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करना है। दोस्तों
दोस्तों ये बहुत ही अल्टीमेट कैलकुलेशंस, अल्टीमेट टॉपिक है। ये हमारे ओमकार सर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारा अफलातून टॉपिक्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या सीखेंगे दोस्तों? आज की तारीख में जितने भी आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम मुंह में आते हैं वो सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है दोस्तों? बहुत ही जबरदस्त मेथड है ये दोस्तों। आप बहुत बार अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। सर हम क्या स्टैंडर्ड सेट करते हैं? अरे बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड, सुबह उठते हैं पेपर उठाते हैं। भाई सर ने सिखाया था प्लानिंग के साथ पढ़ो, शेड्यूल करो और पढ़ो, तो स्टैंडर्ड बनाया। आज हम 15 घंटे पढ़ाई करेंगे, 15 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो हमने स्टैंडर्ड बना दिया। भाई 15 घंटे आज पढ़ना है। रात होते होते सोने का टाइम आया, चलो कैलकुलेट तो करें कितना पढ़ा। पता चला यार हमने तो 11 घंटे की ही पढ़ाई की है एक्चुअल। 4 घंटे हमने वेस्ट कर दिए, काम नहीं किया। सर ये तो हमारा रोज का है, हम रोज बहुत ज्यादा सोचते हैं और करते बहुत कम है। दोस्तों जो आप सोचते हैं कि करेंगे वो आपका स्टैंडर्ड है, और जो आप करते हैं वो एक्चुअल है। और जो डिफरेंस है, वेरिएंस, ये आपको बताता है कि आप अच्छा कर रहे हैं स्टैंडर्ड से कि अच्छा नहीं कर रहे। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने ये माउस बना लिया, तो भाई इसमें रॉ मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड्स कितना लगेगा, उसका एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर जब माउस बन के तैयार होता है तो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं भाई हमने सोचा था कि ये माउस 200 रुपए में बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली 220 में बना। 10% कॉस्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कुछ तो गलती हुई है। तो हम एनालाइज करेंगे भाई रॉ मटेरियल में गलती हुई है कि लेबर में कि ओवरहेड्स में। किधर तो हमने गलती की है कि ये कॉस्ट 20 रुपया बढ़ गया। दोस्तों आजकल चीजें ना स्टैंडर्डाइज वे में चलती हैं। स्टैंडर्डाइज वे में बोले तो आप डेयरी मिल्क का चॉकलेट आपने अगर पिछले साल खाया था, आज खा के देखना, टेस्ट वही लगेगा, टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि डेयरी मिल्क, कैडबरी जो कंपनी है वो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। एक जो भी उसके अंदर रॉ मटेरियल मिक्स किए जाते हैं एकदम फिक्स्ड क्वांटिटीज के हिसाब से, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं किया जाता दोस्तों। एकदम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम चलता है। लेकिन आप अपने घर में चाय बनाते हैं, आती है चाय? क्या पक्का बनाते हैं चाय? ओके बच्चों, एक काम करना, आपने आज 4 दिन पहले, 2 दिन पहले चाय बना के पी होगी, आज पी के देखो, क्या एकदम सेम टेस्ट बनाया आपने? नहीं सर, कभी शक्कर ज्यादा हो जाती है, कभी शक्कर कम, कभी दूध ज्यादा हो जाता है, प्योर चाय बनती है, कभी कभी पानी वाली चाय हो जाती है, पता नहीं क्या होता है हमसे। तो दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड चाय क्यों नहीं बना पाते? क्यों? रीजन उसका ये है, जब हम चाय बनाने को रुकते हैं तो हम जजमेंट बेसिस पे उसमें डाल देते। चाय पत्ती ऐसा डब्बा खोलेंगे, ऐसा उठा के डाल देंगे। दूध, अरे मैंने तो देखा है मेरे घर वाले क्या करते हैं, मैं जब चाय बनाता हूं ना तो मैं बहुत ध्यान से बनाता हूं चाय, मेरे को दूध का जजमेंट नहीं आता है। वो क्या करते हैं ना, वो दूध का पतीला उठा के ऐसा पलटी करते। मैं बोला क्या करे? बोला दूध डाल रहे। बोला कितना कैसे मालूम पड़ेगा? बोला हमको सालों का जजमेंट है। मैं बोला मेरे को तो नहीं आता है। तो फिर दोस्तों वही होता है ना, कभी चाय प्योर होता है, कभी पानी वाला होता है। मैं क्या करता हूं ना, जो कप में चाय पीना है वो कप में दूध डालता हूं, भाई इतना दूध डालना है। लेकिन हम क्या करते हैं, शुगर भी मैंने क्या देखा है, मैं तो शुगर चम्मच से डालता हूं कि प्रॉपर डाले, वो ऐसा करते हैं हाथ से उठा के टक 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 टक। तो क्या होता है बच्चों, उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस है। जो हमारे मम्मी हैं, हमारे घर में जो भी चाय बनाते हैं, लेकिन स्टिल एग्जैक्ट सेम चाय नहीं बनेगा। ऊपर नीचे 19-20, 18-20 तो होने वाला है। बिकॉज स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड, यू आर चेंजिंग द क्वांटिटीज
every time. You are making it on judgment basis, not on accurate basis. दोस्तों ये हमें सिखाएगा how to set the standards, how to do the comparison, and how to do the analysis, and if there are certain problems, how to solve the problem. It's a control function. कंट्रोल सिखाएगा आपको. ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है. और I would say one of the best topic that I have ever seen in costing is marginal costing. मैं marginal costing को मेरी भाषा में हमेशा क्या बोलता हूं? मैजिकल कॉस्टिंग. मेरा क्या हर कॉस्टिंग टीचर का सुपर फेवरेट टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग. इतना मस्त, ये मालूम है मैजिकल कॉस्टिंग है. मैं इतना बोल सकता हूं, जिस किसी कंपनी को मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं आता है वो कंपनी आज की दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता. ये मैजिकल कॉस्टिंग है. ये ऐसा कॉस्टिंग टेक्निक है. ये माउस में अगर 200 में बनाता हूं तो मैं 250 में बेचूंगा, 300 में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा. लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का ऐसा मैजिक आप सीखेंगे बच्चों कि ये 200 में बना के 180 में बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा. माउस का कॉस्ट 200 रुपया, 180 में बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा. बोलेंगे सर पागल हो गए. पागल नहीं हुआ, ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है. और मैं ऐसा आपको प्रूव करके दिखाऊंगा. बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये. बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग. दोस्तों आप बहुत सारी कंपनीज के स्कीम्स देखते होंगे ना. पेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, इसके साथ ये फ्री, 33.33% एक्स्ट्रा फ्री. ये सब गेम मार्जिनल कॉस्टिंग का है. आपको क्या लगता है कंपनीज लॉस करती हैं? नहीं करती बच्चों. कैसे लॉस करेंगे? आप जब सीखेंगे तो आपको समझेगा हाउ दे डू इट. जबरदस्त. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच ऑल दिस. होप सो यू आर ऑल एक्साइटेड टू लर्न इट. बजटिंग दोस्तों, हर चीज का बजट होता है. जैसे मैं कॉस्टिंग की बात करूंगा, हमारा बजट 225 घंटे का है, लेकिन हम हमारे बजट को इंक्रीज कर रहे हैं. अभी इंक्रीज कैसे कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग हम लास्ट में रिवीजन लेक्चर्स भी आपको देंगे. एक्स्ट्रा बजट ऐड हो गया, नंबर ऑफ आवर्स का बजट. हम आपको लेटेस्ट पेपर का डिस्कशन भी करेंगे. हम कोशिश करेंगे वी विल कीप इट लाइव, और उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी वापस सुनने के लिए बच्चों. सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर गोइंग टू मेक इट वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से पेन ड्राइव लेक्चर्स फॉर योर सीए इंटरमीडिएट. गेटिंग इट? सो बजटिंग में हम हमारे कंपनी में बजट्स बनाते हैं बच्चों. जैसे प्रोडक्शन कितना यूनिट्स करेंगे, परचेज कितना करेंगे. बजट मतलब फ्यूचर का एस्टिमेट करते हैं. जब तक आप बजट्स नहीं बनाते तब तक आप एक्चुअल को अचीव नहीं करते. दोस्तों आपने सुना होगा सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट्स दिए जाते हैं, बजट्स हैं वो. टारगेट भाई इतना सेल करना है, बजट है. हमने हमारे इंडिया का बजट देखा है. फाइनेंस बजट, रेलवे बजट बनता था, फाइनेंस बजट में मर्ज कर दिया है. बजट क्या होता है भाई? पूरे साल में कितना कलेक्शन आएगा गवर्नमेंट को और कितना खर्चा करेंगे. पहले एडवांस में बजट करना पड़ता है. आप भी चीजों को बजट करेंगे भाई. कौन सी डेट तक कितने आवर्स आप पोर्शन खत्म करेंगे, कितना क्या करेंगे, कितने टाइम में कितने सब्जेक्ट्स खत्म करेंगे, बजट बनाना पड़ता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम यहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बजटिंग सीखेंगे. प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, बहुत सारी बजट्स बनाना सीखेंगे. काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी बढ़िया सिंपल टॉपिक है. इनफैक्ट वी विल ऑल्सो मेक कैश बजट. तो दोस्तों ये हमारा कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस, एक एक करके हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे. दोस्तों हम जो बोर्ड नोट्स लिखेंगे, जैसे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, तो जो भी मैं लिखूंगा स्क्रीन पे ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा. इट विल बी अवेलेबल. और ये आपके सुविधा के लिए, आपके कंफर्ट के लिए हम A4 साइज में लिखते हैं, सो दैट आप चाहें तो फ्यूचर में इसका A4 साइज बोला तो सिंपल प्रिंट आउट निकाल के फाइलिंग कर सकते हैं.
मैं आपको सजेशन दूंगा, कभी भी कॉस्टिंग सब्जेक्ट में ना प्रिंट आउट मत निकालना, लिखना। प्रिंट आउट इमरजेंसी में होता है, कॉस्टिंग लिखने वाला सब्जेक्ट है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आप सीख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, हमारे ओमकार सर आपको समझाते हैं, दोस्तों बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप उसको लिखेंगे, लिखेंगे तो मजबूत बनेंगे। ये सब्जेक्ट राइटिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, ये राइटिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं। और इन सब में से सबसे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस जिस सब्जेक्ट में चाहिए वो ये हमारा दोस्तों कॉस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ओके सर। अच्छा बच्चों, मैं अभी आगे बढ़ूंगा। आई वुड लाइक टू गिव यू वेटेज ऑफ मार्क्स एंड पेपर पैटर्न। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंस्टीट्यूट के साइट पे ये मार्क्स का वेटेज दिया गया है, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बढ़िया किस्मत लेके आए हैं बच्चों, बढ़िया किस्मत लाए हैं। हमारे टाइम जब मैं सीए पढ़ता था, काय का पेपर पैटर्न, काय का मार्क्स का वेटेज और काय का पेपर्स में छुट्टी, कुछ भी नहीं, एक भी छुट्टी नहीं, मार्क्स पता नहीं, वेटेज पेपर पैटर्न पता नहीं, कभी भी कुछ भी कर देंगे। अब आपकी किस्मत देखो कितनी बढ़िया, बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट ने सब चीजें आपको दे दी हैं। भाई ये इतने मार्क्स का आएगा, प्लान करो, प्रिपेयर करो, स्कोर करो 90+, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो पहला चैप्टर का वेटेज है 10 to 15 मार्क्स। भाई कितना? 10 to 15 मार्क्स। जो आपका थियरी मैंने बोला दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन में आता है थियरी। मैं पेपर पैटर्न में आपको बताऊंगा थियरी कहां पे आता है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो दूसरा पड़ाव है, इसमें 35 से 40% मार्क्स आते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एबीसी और डबल एंट्री सिस्टम जो आपको बोला था। 5 टॉपिक्स हैं ये 5 टॉपिक्स मिला के लगभग 40% पेपर आता है आपका। तो एक ब्लॉक दिया है इन्होंने, 5 टॉपिक्स 40% मार्क्स। ओके, उसके बाद बच्चों अगला जो ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक जो है 25 से 30% मार्क्स आएंगे इसमें बच्चों क्या क्या कवर करते हैं इसमें आपका दोस्तों, ये सबसे मेन टॉपिक जो है, एक्चुअली स्टार्ट ही मैं यहां से करूंगा, सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, उसके बाद जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ये और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस इंडस्ट्री का कॉस्टिंग, 6 चैप्टर्स मिला के 25 to 30% मार्क्स। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 6 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में 3 या 4 चैप्टर ही हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो 30% पेपर इसमें से आएगा आपका। आखिरी पड़ाव जो आपका है 20 से 25% मार्क्स के लिए, इसमें स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजटिंग, ये 3 चैप्टर्स दोस्तों कवर करेंगे। 20 से 25% पेपर। तो आपको पता है कि कौन सा टॉपिक्स का एक ब्लॉक कितने मार्क्स के लिए आता है। दोस्तों मैं आपको ड्यू कोर्स में पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा। लास्ट 5 साल में क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में कौन से टॉपिक्स कितने कितने मार्क्स के कवर किए हैं, क्या हमें कुछ पैटर्न मिलता है, हम वो स्टडी करेंगे। मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूंगा, आप डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेपर का वेटेज ऑफ मार्क्स। दोस्तों मैं आपको पेपर पैटर्न 2 मिनट में डिस्कस करूंगा बिफोर आई वाइंड अप दी सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स। इसमें ना आपको 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस नॉर्मली दिए जाते हैं, समटाइम्स थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, बट मेनली छोटे छोटे 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। क्वेश्चन 2 to question 6, any 4, 20 marks each, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान देना, मतलब एक ऑप्शन रहता 2, 3, 4, 5, 6, 5 में से कोई भी 4 करने हैं,
और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। बच्चों इस बात में आप ध्यान देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 would be your practical and question number 6 would be your theory. ओके, इट मीन्स थियोरी ऑप्शन में है। थियोरी किधर है बच्चों? ऑप्शन में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि थियोरी को पकड़ें कि थियोरी को छोड़ दें। देखो बच्चों, ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है। मैं ऐसा आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्रैक्टिकल की अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रैक्टिकल में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, थ्योरी में आउट ऑफ नहीं मिलते हैं। लेकिन कल को अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाउंसर आ गया तो आप ऑन अ सेफर साइड थियरी के लिए भी तैयार रहेंगे। आप थियरी के लिए भी अपने आप को तैयार रखेंगे तो याद रखना टारगेट होगा प्रैक्टिकल, बट थियरी के लिए भी अपने आप को तैयार रखेंगे, थियरी को भी इग्नोर नहीं करेंगे। और थियरी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से पढ़ना है, हम पूरा डिस्कस करेंगे बच्चों। और हम जो हमारा लेक्चर्स होगा, हम लेक्चर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, हमारी जो शीट होगी ना उसमें हम मॉड्यूल आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड, ये सब दोस्तों कवर करेंगे। आपको प्रैक्टिस सम्स भी दिए जाएंगे और प्रैक्टिस सम्स का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। प्रैक्टिस सम शीट के अंदर ही पीछे हैं, मतलब हर चैप्टर में क्लास और फिर प्रैक्टिस सम्स हैं। फिर उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन का सॉफ्ट कॉपी भी देंगे, किसका? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का। और अगर किसी बच्चे को डाउट्स हैं, तो दोस्तों आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको हम टाइम अलॉट करेंगे कि भाई मेरा या ओमकार सर का फ्री टाइम कौन सा है। आप उस फ्री टाइम में पहले एडवांस में बता देंगे कौन से टॉपिक में है, तो हम लोग वो टॉपिक, हमारा शीट हमारे पास रखेंगे, एमटीपी में है, आरटीपी में है, मॉड्यूल में है, तो हम वो क्वेश्चन हमारे पास ओपन रखेंगे और आप फिर कॉल पे, व्हाट्सएप पे या जैसे आपको ठीक लगे उस गिवन स्लॉट में, गिवन टाइम में वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बच्चों। वी विल बी अवेलेबल रेगुलरली। खाली आपको इन्फॉर्म करना है, आपको स्टाफ टाइम अलॉट करेगा, उस टाइम पे हम डाउट्स क्लियरिंग करेंगे, क्योंकि हमारे भी कैसे लेक्चर्स होते हैं, तो उसके बीच में हम लोग का जो फ्री टाइम रहता है वो फ्री टाइम आपको अलॉट किया जाएगा डाउट्स के लिए बच्चों। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम लास्ट में लाइव रिवीजन लेक्चर्स और पेपर डिस्कशंस करेंगे, लेकिन समझो आपके साथ टाइम के साथ मैच नहीं होता है तो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको बच्चों दी जाएंगी, सो दैट आपका वो अच्छे से कवर होना चाहिए। हम आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताएंगे, टिप्स भी देंगे कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं बच्चों। हमारा विद द ग्रेस ऑफ द गॉड जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बच्चों इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स को आप जितना टारगेट करेंगे अचीव कर सकते हैं। खाली आपको हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ध्यान से लेक्चर सुनने हैं। और कॉस्टिंग सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप भूलेंगे नहीं, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपको अगर आपको स्कोर करना है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के साथ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। तो जितने ज्यादा सम्स आप राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतने आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और उसका फिर आप टेस्ट देंगे। हम आपको टेस्ट का रिजल्ट और फीडबैक देंगे बच्चों। डिटेल्स आपके साथ हमारे ऑफिस मोबाइल पे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको दिए जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे पहले टॉपिक, आई विल बी स्टार्टिंग विद द सिंगल यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट शीट, द बेसिक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। चलो दोस्तों, फ्रॉम दिस साइड गुरमुख रागानी signing off. Thanks a lot. Thank you very, very much. Happy learning.